BMC, which is the country's most richest and largest civic body, has been operating without corporators for over a year now. To gauge this impact, we at Midday, we ran a series of 6 parts in which we spoke to a lot of stakeholders, including former corporators, ALMs, activists, people who live in non-slum housing societies, as well as those who live in slums. And the most important things that came to forth was, that there is no difference, that corporators are not there, is what the first thing that we noted through this series. The second was the things have gone back to worse, and the third was that the bridge between the administration and the citizens has been severed. This particular series of ours actually garnered a lot of comments and opinions on social media. That is when we decided that we should take this to another level, and here we are. We are here without corporator for last 17 months, and we are looking forward to you. What exactly means? Do you miss them or not miss them? Where you required them or miss not? As a forum, we've been directly dealing with the administration even before this. Our cooperator is very helpful when she was there, but we feel we can do the same amount of work whether the cooperator is there or not there. Having said that, I also feel this shows that the system is lacking, because cooperators need to be more effective and ought to be more effective, but they don't have powers to suggest a project. They can only, from what I know, they can only vote for a yes or a no. They don't propose anything really, and the budget they have available to them is fairly meager for the upliftment of a ward. So really what this shows is that the power cooperators have is very little. They need more power. In fact, all over the world now there's a very effective movement which says that 30% of the capital budget of a city must be decided by the citizens. Now the question is, are the cooperators really fulfilling their role and responsibilities to the major people in my area? So basically, is the cooperator really interested in fulfilling his role, or does he really know, or is he educated enough to understand what is his role, or he's just put there by some figure eight? So most often I find that the cooperators are more worried about their name tag, and I'll even tell you why I feel so. And they have their own personal agendas, their community, their group, and even they take credit for works that they have not done. I'll give you a recent example. March 2022 onwards, these cooperators were out of the scene, though they used to be sitting in the BMC office. Okay, now we as Sakanagar 1, 2, 3 and 5, we kept 4 out because they're slum areas. We have a different total mindset. Though they were out, they always with us, but not an active at our meetings. So we managed to get concreting of our roads. Now let me explain to you. Sakanagar 1, 2, 3 and 5 was basically a 1+2 or even just ground +1. Today it is a mini Cuff Parade. Today if you come and see, we have all beautiful towers. Okay, all have very big areas, and but we had no infrastructure. Total zero. The roads bad. So we got a road concreted. We got the funds from the central government, and we got that road to be concreted. So before the starting of that project, our cooperator, he came with his janta, and he brought 14 coconuts, and he brought everything and films, everybody to shoot and all, and he showed that he did the project. But the question is, everybody knew that he did nothing. So it is a sad state. कॉपरेटर्स जो माइनर इश्यूज है सिटीजन्स के बहुत जल्दी रिड्रेस कर देते हैं, रोड डेब्रीज निकालना या वेस्ट मैनेजमेंट करना या गटर्स बनाना, टू क्रिएट एन इल्यूजन के हम काम करते हैं. बट जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट के, हैवी व्हीकल इन रेजिडेंशियल एरियाज के, इलीगल वाटर डाइवर्जन्स, कंटामिनेटेड वाटर,
ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ जाते हैं हमें जो कॉर्पोरेटर्स साइडलाइन करते हैं। इसके लिए बीएमसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इफेक्टिवनेस विदाउट कॉर्पोरेटर्स बहुत अच्छे से चल रहा है कुछ मुद्दों पे, एंड दिस इज द रीजन। Now, I will tell you my experience from 2022 onwards. Okay, we had, when there was no cooperator, we developed a more positive, a more personal, and a constructive outcome with these ward officers. Believe it or not, the commissioner, along with different department heads, used to have personal meetings with us. They allocated funds which was never done before. Plus, they called us for joint supervision of all jobs that were done in the area. So it was a very happy, situation. What all got done in this time, I'll tell you, which was never done in my 62 years of age. Okay, concreting of the roads. Okay, deep cleaning of all the gutters, nalas, stormwater drains. Okay, new drains, new nalas were built. Okay, garbage issues were solved, encroachment issues were solved, illegal parking along with the Suman Nagar police station. They helped to remove the illegal parking, to fine everybody. This was not being done. Hawkers were moved in the right places, tree plantations, roads, pavement, everything was done. Now tell me, when we had such friendly cooperators, I mean, I could walk in, talk to them and have a meeting, they did nothing for us. At our meeting about parking, we brought a full junta who stays outside our colony and say they are parking here for the last 40 years. I said, I'm staying for the last 60 years. Last 40 years, there was only 2 cars in this entire area. So, they're just talking. They have also done. I'm not saying they've not done. The one thing that will surprise you all, for the last 60 years, I've seen floods in my area every up to knee level. In 2005, I saw it over my head in my house. But this year, not a road had any flood. In a colony known as Shell Colony, where it was known to be an area for low price rate because of flooding. So this year we had no floods and we never even used the pumps this year. You have the power, we need you. Administration is not going to do, they're going to execute. You're making the policy, but make the policy then. Why are you all not making the policy correctly and thinking big in terms of vision? So that needs to happen. And I think the problem is that cooperators of vision are not put forward by the political parties. My ward has a cooperator who we engage with all the time, but she is like that. आप लोगों के नज़रिए में बीएमसी कुछ भी कहीं नहीं करती है। मैंने नगर सेवकों को रास्ते पे उतरकर इवन ट्रैफिक मैनिंग करते हुए देखा है भरी बारिश में। नगर सेवक को मैंने इंक्लूडिंग मैनहोल तक जाते हुए देखा है, इवन कॉल करके लड़ते हुए देखा है, मारते हुए देखा है, चिढ़ते हुए देखा है। उसके ऊपर केसेस होते हैं, वो उसके घर के वैयक्तिक केसेस नहीं होते कि उसने बेटी ब्याह या दामाद मार रहा है। वो केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप लोगों जैसे लोगों के मुद्दे उठाता है। ये वो नगर सेवक है जिसको पता है कितना मानधन मिलता है, 10,000 रुपये। अभी शायद आसिफ भाई 25 मिल गया है। As a cooperator, I feel yes, social media, there are various mediums of trying to address and trying to resolve your issues. But somewhere I just feel having a cooperator, being a proactive cooperator, it helps in reaching our goals faster, be it a project or be it a mere complaint. So I feel the cooperator plays a very important, pivotal role in linking the administration to the citizens. Eventually, even the cooperator is part of the citizen. He's also a citizen first, then a cooperator. So he's well aware of that area. Like I represent Bandra, I'm born there, so I know the dynamics of the area. I know beautification, sometimes it's wasteful. So likewise, we are also aware and accordingly we propose. Definitely, the cooperator has all the right to propose projects worth crores of rupees. Eventually, there's a due diligence done by the administration. Is it viable, not viable, doable, not doable? Those things, we are not involved in the technical analysis of a project. But definitely we can propose, and we have proposed. I mean, there are 4 of us sitting here. We have in our own way have proposed in the past. Many of the projects have also been done. It's not that they have not been done. So I just feel it's more on the cooperator, how involved he wants to take, how much does he want to involve the residents, how much does he want to take them on board and do working. Because I personally feel it's a 3-way effect. If the administration, the elected wing and the citizens, if they work hand in hand, definitely the results are better, and I can narrate hundreds of examples such wins city.
कोणताही नगरसेवक कोणताही मुंबई महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी हा 5 वर्षाच्या आत सगळ्या गोष्टी महानगरपालिकेच्या शिकून घेऊन ती कामं तिथे पूर्वत्वास नेईलच असं नाही की नगरसेवक आहेत पण त्यांना पॉवर्स नाही आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. पॉवर नसली तरी त्या प्रशासनावर कसा वचक ठेवायचं आणि कसं कामं करून घ्यायचं हे प्रत्येक नगरसेवकाचं स्किल असतं आणि ते स्किल ज्याने आत्मसात केलेलं आहे तो कोणत्याही या प्रशासनाकडनं ज्या बाबी आहेत ते पूर्ण करण्याकरता कुठेही कमी पडत नाही. एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जो काउंसिलर होता है या जनप्रतिनिधि होता है वो एक ब्रिज का काम करता है. अब उसमें अलग अलग ब्रिज है, उसमें रेसनिंग के इश्यूज़ हैं, उनके रोज के एडमिशन के इश्यूज़ हैं. अब जैसे मैं चुन के आता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पठानवाड़ी, इस्लामपुरा, कोकनीपाड़ा. अब समझ सकते हैं मैं बीजेपी से हूँ, पठानवाड़ी, कोकनीपाड़ा, इस्लामपुरा, यहाँ सब बूथ से मैं सब जगह से मुझे वोट मिलता है, सबका वोट मिलता है और फर्स्ट टाइम हूँ. लेकिन जब हम जिस दिन काउंसिलर बनते हैं ना, जनप्रतिनिधि बनते हैं, पहले दिन ये आता है कि नो योर वार्ड्स, नो योर वार्ड एक बुक मिलती है. तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारे वार्ड में क्या क्या है, कहाँ पे एमिनिटीज़ है, कहाँ पे इंक्रोच्ड है, कहाँ पे फुटपाथ है, कहाँ पे डीपी रोड है, कहाँ पे गार्डन है, कहाँ पे स्कूल है. फिर इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड का डिटेल्स होता है. तो जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठते हैं, वहाँ स्लम की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ का फुटपाथ कैसे है, वहाँ का डीपी रोड कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, रोड की कंडीशन कैसी, स्कूल में कैसे, महानगर पालिका की स्कूल है, बाकी फैसिलिटी कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, लोगों को कुछ लेना देना नहीं. कारपोरेटर का अलग अलग रोल होता है कि आप जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठते हो क्या करना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल है, स्कूल में अच्छी लैब चाहिए, तो लैब मैंने CSR से जरूरी नहीं फंड की, मैंने CSR से बात किया, हमने अच्छी लैब और लेबोरेटरी बनवा के ले लिया. जब आप सिटी पे बैठते हो, जब हेड ऑफिस आते हो, तो काउंसिलर का विजन होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि मुंबई का फुटपाथ कैसे है, मुंबई का रोड कैसे होना चाहिए. वहाँ पे पॉलिसी डिसीजन होता है और मुझे नहीं लगता काम के लिए सत्ता और इसका कुछ फर्क पड़ता है. और वही कमिश्नर वहाँ पे आप बैठते हो, गार्डन कैसा होना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आपके लिए बच्चों के लिए पार्क कैसे होनी चाहिए, रोड कैसे होना चाहिए. सर आप सोच सकते हैं 40 साल में बोलता हूँ एक डीपी रोड मुंबई महानगर पालिका खुल नहीं पाई. कहाँ से हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. तर कॉर्पोरेटर हे पद हे महत्त्वपूर्ण असणं आवश्यक आहे. तो कोणत्याही पक्षाचा असून दे, पण नगरसेवक असेल तर प्रशासनावर पकड, प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यामधला दुवा या नात्याने नगरसेवकच चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो. आमचं रोजचं काम आहे शाखेत बसणं किंवा कार्यालयात बसणं. रोजच्या रोज सामान्य माणसाच्या जे दैनंदिन गरजा आहेत, त्याच्या काही समस्या आहेत, ते सोडवण्याकरता आम्ही त्यांना फेस टू फेस त्यांच्याकडे आम्ही जात असतो किंवा त्यातनं मार्ग काढायचा प्रयत्न करत होतो. कुठलाही अधिकारी मग तो मेंटेनन्सचा असून दे, वॉर्ड ऑफिसर असून दे, हा गल्ली बोळामध्ये स्वतःहून कधी जाणार नाही. Why the ALMs don't engage? मैंने ALM सर में काम किया कांदिवली और मलाड में. Why there is this kind of a polarization? Aren't we working for a common platform? 371 ALM है. How many ALMs are actually working as a point of contact? No. There is arrogance. They feel कि they are very arbitrary. आपने कहा आपने एक जगह का आपने पूरा कंक्रीट कर दिया रोड. सर आपके पास जब कोई आके ये कहेगा ना कि ये में मेरी माँ या बहन या मेरी बेटी को एडमिशन दिलवाओ, आप बोले कि भाई वो मेरा काम नहीं है. नगर सेवक वहाँ पे जाके करवाता है काम. आपने अपने लेवल पे देखा हुआ है. खाली 92 लाख वोटर्स है BMC शहर में और बताइए 52% लोग जाते हैं वोट करने के लिए. पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि जब शहर की विकास की बात आती है तब हमको शायद एक बड़ा विजन लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है. We cannot compete with foreign countries and give all this big data, sir, what you're talking about. The civic sense there is much higher than what we are here. We are highly indisciplined people. In China there is a policy called recall. We do not have it here. हमारे नगर सेवक issues manifestos नहीं निकालते हैं. I think ALM should pressurize कि आप issues manifestos निकालो. आप उसके बाद में then आप उसके साथ में engagement में बैठो. Let ALM also become a body not as a check and balance, but a body which should engage. The corporate is the first point of contact. आज in a day any citizen of मुंबई का सुबह से लेके शाम तक या जन्म से लेके मृत्यु तक और बीच में जो होता है आपको कहाँ ना कहाँ कॉर्पोरेशन लगना ही है. चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो फुटपाथ हो, चाहे एनीथिंग, और ऑन अ डेली बेसिस.
तो कहाँ ना कहाँ कॉर्पोरेटर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आई थिंक द कॉर्पोरेटर प्लेज अ वेरी पिवटल रोल in addressing the issues of the city of Mumbai. कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है वो उस हिसाब से अपने परिप्रेक्ष्य में उसको देख रहे हैं. जो टावर में रहते हैं उन्हें लगता है कि वो जो भी 5-10 हज़ार कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ वो ये सवालों को हल कर सकते हैं. जो झुग्गी झोपड़ियों में आए, मैं पिछले 22 सालों से एम ईस्ट एम वेस्ट ये जो वार्ड है यहाँ पे हमारे संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं. और अगर वहाँ पे पूछा जाए कि आपको नगर सेवक चाहिए की नाही, तो भाई चाहिए. मुंबईसारखं फ्लोटिंग पॉप्युलेशन असणारं जे शहर है कि आए दिन लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, उनको वहाँ पे अगर हमें सारी चीज़ें सुविधाएं देनी है तो वो नगर सेवक एक ज़रिया है. मुझे लगता है कि उनको वहाँ पे होना चाहिए और हमने सभी का नेतृत्व करना चाहिए. अभी मुझे मुंबई में भी 2 चीज़ें, जैसे हम एक भारत के बारे में एक अमीर भारत और एक गरीब भारत देख रहे, तो वैसे मैं मुंबई को भी एक अमीर मुंबई और एक गरीब मुंबई देख रही हूँ. एक भारत और इंडिया या 2 भारत है ना, एक गरीब भारत अमीर भारत. रियल में पिक्चर दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक भारत है जिसके पास एड्रेस करने के लिए ट्विटर है, जिसके पास फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. लेकिन वही जब मुंबई की बात करते हैं, करीब 60% पॉपुलेशन जो स्लम में रहती है उसमें भी 20% ऐसे हैं जिनके रोज के चैलेंजेस हैं. तो उनके टॉयलेट के दरवाजे टूट जा रहे हैं, वो रिपेयरिंग कैसे होंगे? रिपेयरिंग हो जाए तो भी चल जाएगा, काम चल जाएगा. और 25-30 साल में काउंसिलर, बाद में एज ए सिटीजन आपको लगता है कि हम टॉयलेट में पानी भी नहीं दे पाए हैं. अब जाइए स्लम में देखेंगे कि टॉयलेट के अंदर पानी भी नहीं है. आज भी पॉट लेके, बाल्टी लेके हमारी बहनें यहाँ की लेडीज जाती है. और फ़ोन तो घर में किसी एक को होता है, वो भी मैं फ़ोन लाया नहीं, वो कीपैड वाला वो फ़ोन होता है. उस पर कैसे ट्विटर पे एक्सेस करेंगे, कैसे कंप्लेंट करेंगे? दूसरे क्लास की बात कर रहे हैं, जैसा बहन ने बताया भारत की, वो तो उनकी समस्या सर रोज़ की है. सर ऐसे भी लोग आते हैं ना, हस्बैंड ड्रिंक करता है, बच्चा की कोई ना कोई बीमारी है, अगर उसको मेडिसिन एक दिन का नहीं मिले ना, 30 रुपये का टेबलेट नहीं मिले ना, तो कोलैप्स हो जाएगा. वो 30 रुपये का टेबलेट लेने के लिए भी हम लोग के पास आते हैं. तब कोविड में तो और चैलेंजेस हम लोग सब लोग करीब करते होंगे, कम ज़्यादातर लोग करते होंगे. कुछ फैमिलीज़ को तो रेगुलर फीस 1 टाइम भरते हैं, कुछ जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनकी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका ठीक है, उनको राइट्स तो है ना, दुनिया में आया है तो उनका पढ़ने का, सीखने का, जीने का राइट्स तो है ना. हम लोग सपोर्ट करना चाहिए. सपोर्ट हमारी तरफ से नहीं करते, आप जैसे लोगों से मांग के करते हैं. घाटकोपर में एक 550 रेजिडेंट्स की सोसाइटी है. ये मिड डे ने रिपोर्ट भी किया था ये मुद्दे को, मिस्टर दिवाकर ने. इसमें ये सोसाइटी में जो पानी आना चाहिए, पानी लोगों का संवैधानिक हक है, फंडामेंटल राइट है. वाटर इज बीइंग इलीगली डाइवर्टेड to the slum. It's Gilbert, or there is a slum beside this society. None other but the MLA and the corporators themselves are coming and fighting for the slum dwellers and saying नहीं कि आप पानी वहाँ पे डाइवर्ट कीजिए. और वहाँ पे ऊपर हिल पे एक बाथरूम है, उधर तक पानी आता है, लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो वाटर टैक्स देते हैं, म्यूनसिपल टैक्स देते हैं, हर एक तरीके का टैक्स देते हैं, उनकी ज़िंदगी का जितना कमाई है उसका 40% टैक्सेस में जाता है, उनको पानी नहीं मिलता है. Then when you say why people don't come and vote, I come from an area where it is very upmarket, and K West Ward stands second in the property tax collection in Mumbai city. And you see the number of bridges and roads and kind of infrastructure in K West Ward. After paying crores of rupees of property tax, what we get in infrastructure is why people don't come out to vote. When we pay 50,000 rupees maintenance per month, which is not even the income of a lot of people, that is why people don't come out to vote, because they feel angry at what kind of roads that we have. When we talk about Bharat and India, that is why the disparity is there. That India doesn't get what we are paying for, and Bharat gets what they are not paying for. I'm not saying they should not get what they should not paying for, but when people are paying for it, there should be a checks and account balance where 52,000 crores are being spent, and still we are talking about basic infrastructure, about roads, water. We have not still progressed ahead.
I just want to begin by saying that in a democracy, we must think from the perspective of the most vulnerable also. अनुभूति का काफ़ी ज़्यादा काम NT और DNT कम्युनिटीज़ के साथ है. कई बार नोमैडिक ट्राइब, डीनोटिफाइड ट्राइब के बारे में बात होती ही नहीं है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है. When you think from the perspective of these kind of families जो मुंबई की बस्तियों में भी नहीं रहते हैं, उनके आउटस्कर्ट्स में टेंट्स में जीते हैं, रोड साइड पर जीते हैं, ओपन स्पेसेस में जीते हैं, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लुकिंग एट पीपल फ्रॉम लीगल एंड इलीगल काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव. अगर लेकिन ये सिटीजन्स हैं, बिल्कुल हैं. अगर हम इस तरह के इतने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में जी रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है कि जो लोक प्रतिनिधि की हम बात कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा एक रोल बिल्कुल होता है. जैसे मैं काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकती हूँ. अभी इतनी ज़्यादा जो बारिश हो रही है इन दीज हैवी रेन्स, फैमिलीज़ है जो बस्ती के भी बाहर ऐसे रिस्की लैंड में रह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर साल ये सिर्फ पानी घर के अंदर भरने की बात नहीं है, वो रिस्की लैंड्स अंदर घुस जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं, घर गिर जाते हैं, घर बह जाते हैं. ये रात के 3-3:30 बजे हो रहे हैं. सो दे वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली, राइट. नगर सेवक, नगर सेविका कई बार उनके ही एरिया में रहते हैं, उनके पास एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है. एक प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की जो ज़रूरत होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वार्ड ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन कई बार उनको एक्सेसिबल हो सकते हैं लेकिन नहीं होते, क्योंकि वो लैंग्वेज, वो एप्लीकेशन, कई सारी जो चीज़ें हैं, वो जो प्रोसीजर्स है, वो इस तरह के फैमिलीज़ बिल्कुल भी उनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है. रिहैबिलिटेशन के इस तरह के कॉम्प्लेक्स मुद्दे एडमिनिस्ट्रेशन तक खुद का रिप्रेजेंट करना कई बार पॉसिबल नहीं है. वहाँ पर एक लोक प्रतिनिधि की बिल्कुल ज़रूरत होती है जो उनके मुद्दों को एक दबावगढ़ की तरह, प्रपोजल्स तो नगर सेविका की तरफ से जाते हैं और वो इन तरह के जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनके लिए एक दबावगढ़ जैसे भी तो काम करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. उनकी तरफ से एक मॉनिटरिंग करने का काम बिल्कुल करते हैं. डॉक्यूमेंटेशन की बात की, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ये बिल्कुल सच है कि आज तक लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर रिकमेंडेशन दे, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है कि वो अपने शाखा में जाए, उस ऑफिस में जाए और वहाँ से वो रिकमेंडेशन लेटर ले. Without this letter, most of the nomadic आदिवासी people will not be able to prove their existence. तो कोई भी अगर गवर्नमेंट बेनिफिट को एक्सेस करना हो, how will they access it unless they have the people's representative in office? So yes, we do feel that लोक प्रतिनिधि की बिल्कुल ज़रूरत है. मोस्ट ऑफ द एरियाज जहाँ पे स्लम्स होते थे, वहाँ पे स्लम ड्वेलर्स जाके बाहर रोज़ कचरा फेंक के आते हैं. आजू बाजू में रेजिडेंट्स हैं. हम लोग ने 2-3 जगहों पे बहुत कोशिश किया ये इशू रिजॉल्व कराने का. बीएमसी का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कचरा रोज़ लेके जाता था, लेकिन हमने बीएमसी को बोला कि आप ये इरेडिकेट क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो स्लम ड्वेलर्स कचरा रास्ते पे फेंक के जाते हैं, आप उनको फाइन क्यों नहीं मारते हो? या तो आप अपना बीएमसी का वैन रख दो, उनको बोलो सीधा आके हम टाइमिंग्स देते हैं, आप ये टाइम पे हमारी वैन है कि आप सीधा वहाँ पे डाल के चले जाओ. ये नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर्स उन स्लम ड्वेलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. बीएमसी ऑफिसर्स को बोलते हैं आप उनके खिलाफ एक्शन ना लो. तो दिस इज वेयर आई एम कमिंग व्हेन आई से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफियरेंस इन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एंड ब्लॉकिंग ऑफ रिड्रेसल बाय कॉर्पोरेटर्स. अभी यहाँ पे आने से पहले मैं लोगों से बात कर रही थी कि आप नगर सेवक को मिस करते हो क्या, यही सवाल मैंने सबको पूछा था. बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम फ़ोन करते हैं, बीएमसी के लोग आते हैं, काम होता है. इसमें भी 2 बस्तियाँ अलग थी. एक ऐसी बस्ती थी कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे सारी सुविधाएं आती है, अगर नहीं काम हुआ बीएमसी का तो मोर्चा जाएगा. एक बस्ती ऐसी जिसने कहा कि नहीं, रोज़ हमें फ़ोन करना पड़ता है, हम वही नगर सेवक के पास जाते हैं जो अभी पद पे नहीं है, लेकिन सफाई नहीं हो रही है, कचरा वैसे ही पड़ा है, गटर भरे हुए हैं. स्लम में जो लोग हैं, जैसे आप जैसे जो एलिट क्लास, वो तो समझ जाते हैं कि ये काउंसिलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन बाकी लोगों को मतलब नहीं है. हमने तुमको वोट दिया ना, दिया नहीं दिया सेकेंडरी चीज़ है, ये करो. उनके रेशन से लेके स्कूल फीस से हर चीज़ के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके आज भी लोग आते हैं. नाउ द मेजर कंप्लेंट्स अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स, नो केयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मिडिल क्लास सिटीजन्स, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज़ में
हम लोग ने प्रीवियसली देखा कि वोटर्स जो अर्बनाइज वोटर्स थे वो नीचे आके वोट नहीं करते थे, तो कॉर्पोरेटर्स का माइंडसेट था कि मैं ये बिल्डिंग वाले के लिए क्यों करूँ जब मेरा वोटर तो स्लम ड्वेलर है, वो बेचारा मेरे को आके वोट दे के जाता है। ये लोग तो वोट देने नहीं आते, लेकिन हम इलेक्शन जीत के आते तो सबसे पहले 101 कंप्लेन होते रहते। ऑन डॉक्टर अम्बेडकर रोड वी हैव अ ह्यूज स्लम बैंक। ऑपोजिट द स्लम बैंक an entire footpath was made by the BMC for the pedestrian safety, for the pedestrians to walk. That entire footpath has turned into a business center for the slums that is opposite the road. तो नाई का दुकान, जूते वाले का दुकान, भाजी वाले का दुकान, तो पब्लिक कहाँ चले? और वो रास्ते पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो उसके बावजूद भी बीएमसी की डिपार्टमेंट्स काम नहीं करती और वो बोलते हैं कि प्लीज़ ब्लेम योर कॉर्पोरेटर, नहीं तो कॉर्पोरेटर सर हमारा ट्रांसफ़र करा देगा। I feel, a very landmark change was done by the ex-municipal commissioner, Mr. Praveen Pardeshi, when he started, the entire process of, reporting it on Twitter and social media, which empowered citizens, to get their issues solved by just, downloading an app, tweeting it to the respective ward, and local ward was empowered to reply. At that time, the social media team was very, very powerful. Every single, I would say about at least 90+% people would get a reply for their civic issues, whatever they report. Later on, the municipal body, started various avenues of, how people could report the issues like 1916. Then they advertised their local wards, complaint number. Then they developed one WhatsApp system where you send, they had a bot where, you 1, 2, 3, 4, 5, 6, then, to issue you a complaint number. Then I think recently the chief minister had a complaint number for garbage. So there are various ways, where this gap, I think, has been reduced between the citizens' body and the municipality. Citizens' bodies across Mumbai city have mushroomed in a big way because there is a lacuna where councillors were not able to solve the citizens' issues and not able to raise it effectively. That's why you see, the citizens' bodies, if you see our social media numbers, they have exploded like crazy in the last 2-3 years. All of us, having, like he has 20,000, we have 26,000 followers, which is, which we never dreamt of when we started off, many years back. बीजेपी फॉर एमसी जब हैंडल मैं ही देखता हूँ, तो उस पर जो स्टैंडर्ड 1.5 मीटर के फुटपाथ की विड्थ होती है कम होना चाहिए, मैंने ट्वीट किया था। हम उसको कॉपी करके हम तो रिप्लाई करते ही हैं, साथ ही साथ वो कंसर्न जो बताए ना, वो कंसर्न वार्ड को जो असिस्टेंट कमिश्नर और डीएमसी को ट्वीट कॉपी करके उनको पेस्ट करते और फोन करते थे, कोई इसको एड्रेस करो नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इलीट लोग हैं, ट्विटर पे हंगामा मचा देंगे। 52% पीपल वोट इन द म्यूनसिपल इलेक्शन। मेरा ये बहुत अहम सवाल है कि 48% ये कौन लोग हैं जो नहीं आते हैं, और ये जब नहीं आते हैं, ये वही 48% लोग हैं जो ट्विटर पे बैठते हैं, ये वही 48% लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं। मेरे पास डेटा खरीदने के लिए जब पैसा आता है ना, तभी मैं घर में बैठ के एयर कंडीशन में बैठ के मैं बीएमसी को गालियां दूंगा। मैं वार्ड ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के साथ में काम कर चुका हूँ। 1916 जहाँ पे ऑपरेट होती है, मेरे साथ चलिए आप, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी एंड कम विथ मी। 12-12 घंटे वहाँ पे वो बंदा लेके आपकी कॉल्स लेता है। एक म्यूनसिपल काउंसिलर ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट यू विल डिसाइड कि आज ही चली जाए। हमको आज़ादी जब मिली ना, तो वो फेजेस में मिली है। आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वाज आवर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। If you say that there was no flooding this year because there were no corporator, I'm sorry, I would like to correct you. It is not the corporate jobs to clean the drains. It is the administration's job. I mean, my 4 colleagues are here. Even today, the administration still calls us, still asks us, sir, what works to propose. Still tells us, sir, yeah, problem mein kya karu, sir. Still they call us, we are stuck here, help us. So maybe officially we are not corporate anymore, but still on a daily basis we are hands-on. Still, many of the people do definitely call us for addressing the issues, and all that is that the works that are happening also today, the corporators, the administration calls us and tells us to propose. All of us have given letters. So do these things. So for the administration, also for the engineers, they get ready-made because they are not as hands-on as we are of the area.
So they get a ready-made list, that this thing be done, and then obviously the administrative process takes on. So in all fairness, everything good happens, you say everybody gets the credit for it. Everything bad happens, the corporate, I think it's unfair. आज भी फीडबैक के लिए आज भी ऑफिसर्स वैसे ही फोन करते हैं, आज भी हम लोग वैसे ही जाते हैं. आज उल्टा हम ज़्यादा बिजी हो गए, क्योंकि पहले फ़ोन पे जो हो जाता था हम लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते थे, हमको राइट्स था, एमएमसी एक्ट में पूछने का था, है ना. एक बार पूछ लेते लोग डरते रहते थे, खुद इशू ढूंढ के लाते थे. वो अब थोड़ा सा हमको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है कि हमको जाना पड़ता है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉडी होना बहुत ज़रूरी है. कॉर्पोरेटर थे तो प्रशासन को भी एक डर था कि भैया ये स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है, कल वहाँ हरकत मुद्दा ले लेगा, जान दो भाई हम मेरे को खड़ा कर देंगे. आज भी जब हम कॉर्पोरेटर नहीं हैं, लेकिन हमारी सुनवाई होती है, काम होता है, थोड़ा आगे पीछे होता होगा, थोड़ा और दबाव डालना पड़ता है, लेकिन होता है. SRAच्या मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंगी मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर या भागामध्ये झालेल्या आहेत. तर मोठ्या प्रमाणात लोक तिथं आलेले आहेत. त्याच्यामुळे सफाईचा प्रश्न सगळ्यात मोठा उपस्थित होतो. पण MMRDAने त्यांनी महानगरपालिकेला परमिशन दिलेली नाही. त्याच्यामुळे आम्ही तुमच्या दारात येणार नाही, तुम्ही आमच्या दारात. तर हे जे कॉर्डिनेशन आहे ना, वेगवेगळ्या म्हाडा असेल, MMRDA असेल, BMC असेल, यांच्यातलं आपापसातलं कम्युनिकेशन पण नाही. त्याच्यामुळे पण नगरसेवकही भरडले जातात आणि सर्वसामान्य लोकही भरडले जातात. माझ्या निदर्शनास आलं बऱ्याच ठिकाणी आपण माहीम कॉजवेला जे रेक्लेमेशनला जाताना जो लेफ्ट टर्न आहे, मी एक उदाहरण देतो, तिकडे सर्रास डेब्रिज पडलेला असतो. आज त्याच्याकरता CM क्लीन मुंबई हेल्पलाईन म्हणून उघडावी लागले. आज मला सांगा, मुख्यमंत्र्यांचं डेब्रिज उचलायचं काम आहे का? मग जर डेब्रिज तिकडे पडलेला असेल आणि तो उचलला जात नसेल तर प्रशासनावर पकड ठेवायला CMला हेल्पलाईन काढायला लागली. ही आत्ताची वस्तुस्थिती किंवा आत्ताची ही संपूर्णतः मुंबई शहराची ही स्थिती निर्माण झालेली आहे. So in the absence of corporators since the last 17 months, the administration employees feels that they are not answerable to anybody. They take any decision without application of mind, that making illogical decisions. They are passing tenders worth hundreds and thousands of crores without a standing committee. A councillor, I am not an engineer to decide what bitumen should go, at what level it should go. The corporator can propose. Eventually, जो आप बोलते हो ना, I was reading in the paper, we don't need councillors, we can straight go to the assistant commissioner, get done. It is their responsibility, sir. Today the roads are bad, it is the responsibility of the administration. All that you've highlighted is the drawback and the failure of the administration, where the councillor tries to bridge the gap and tries to make them accountable. No councillor has a magic wand, but it's just that constant hammering, constant of raising that issue some way helps us. This particular conversation was needed to be had, and with active participation from all you stakeholders. So on behalf of Team Midday, I would like to thank you all. Thank you so much for attending this today, participating so actively. It was a healthy conversation, and finally, giving us some valuable inputs and unique opinions of yours. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.